Hello students, how are you? Fine, very good. So you are welcome in the new session or in the new class of class 9th. So in class 9th, just I'll teach you physics and chemistry. Okay, so in physics, how many chapters you have to just learn here? Just we have discussed already how many chemistry chapters you have to learn here. Also we have discussed. Okay, so today I am going to now start physics chapter number, that is 8, motion, and this is the part 1 of chapter number 8. So let us start chapter number 8. So that is called motion. What? Motion. What do you mean by motion? Motion, that means in each and every moment it is changing in the body. What is motion? In each and every moment it is changing in the shape, size, conditions of the body. That is called motion. What is motion? So motion is defined as the rate of change of, so the rate of change, the rate of change in position and condition with respect to time is called what? Is called motion. Is called motion. Understood? सो टाइम के साथ जब किसी भी बॉडी में मूवमेंट हो, चेंजिंग हो, दैट मीन्स द बॉडी इज इन मोशन. सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन, टेल एग्जाम्पल ऑफ मोशन. मूविंग कार, moving fan, moving train, etc. So these are the examples of motion. Understood? So any body changes its condition or situation with respect to time. When time is passing, it is changing its position. That is called motion. Clear hai? So just before minutes, what were you doing? So you are doing something, or you were watching TV, you were operating mobile. But right now, what you are doing? You are watching my video. That means with respect to time, जैसे ही टाइम पास हुआ, अभी तुम्हारा क्या हो गया? कंडीशन चेंज हो गया. अभी मैं खड़ा हूं, कुछ देर बाद मैं चलने लगूंगा, चल रहा हूं. तो जब चल रहा हूं तो इससे पहले हम रेस्ट में थे. इससे पहले क्या थे? रेस्ट में थे. अभी क्या हो गए? मोशन में हो गए. मेरा शेप चेंज होने लगा, कंडीशन पोजीशन चेंज होने लगा, एंड दैट इज कॉल्ड मोशन. मोशन दैट मीन्स टाइम के साथ में
वो टाइम के साथ में क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपने पोजीशन को इस जगह से इस जगह से इस जगह with respect to time. So this is nothing but motion. So we have taken the various example of motion, moving car, moving fan, moving train, etc., etc. But you just imagine. So this is called motion. Okay na? Good. So now types of motion. Types of motion. Types of motion. Types of motion. So there are two types of motion. There are two types of motion. There are two types of motion. First, uniform motion. First, uniform motion, and second one is non-uniform motion. Non-uniform motion. That means these two motion or these two types of motion are the main types of motion. These two motions, uniform motion and non-uniform motion. So note it one by one, just I'll explain here. Note it. So for noting, pause the video and then note down. Okay? Good. So make your heading uniform motion. But uniform motion. Uniform motion. Uniform motion. Uniform motion. What is uniform motion? Uniform is very well known word, na? Uniform is very well known word. So just you come in school daily in uniform. Understood? तुम डेली स्कूल आते हो यूनिफॉर्म पहन करके ना, यूनिफॉर्म में आते हो. यूनिफॉर्म मतलब आता है समझ में? क्या होता है यूनिफॉर्म मतलब? हाँ, यूनिफॉर्म सर पहन के आते तो है, बट यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस होता है ना. यूनिफॉर्म दैट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर इन सेम फेज. जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स एक ही फेज में हैं, एक ही पोशाक में है, एंड दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म. एक समान. यूनिफॉर्म दैट मीन्स एक समान. सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग एक कलर के पहने हुए हैं. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. क्लियर है? सो यूनिफॉर्म मोशन से यहां पे क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? सो व्हेन अ body covers equal distances in equal time of interval. जो इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी बॉडी है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स द बॉडी is said to be in uniform motion. जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब उस बॉडी को क्या बोलेंगे? देन द बॉडी इज सेड टू बी इन
यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि एक कार है, मैं कार बनाता हूं। कौन सा कार है बच्चों, ये कार अब कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये कार जो है इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में, और चल करके यहाँ पे पहुंचेगा कार। सॉरी, ये कार है, चल करके यहाँ पे पहुंच चुका है अपने गंतव्य पे। अब हम लोग देख रहे हैं ये कार यहां से चलना शुरू किया है, तो जब यहां पे था तो टाइम कितना था उस समय, 0 था, टाइम 0 था, मान लीजिए टाइम 0 था, अभी कोई समय नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। अभी ये क्या है, रेस्ट में है। टाइम 0 मतलब क्या है, ये रेस्ट में है। अब ये जैसे ही यहां से चलना शुरू किया, जैसे ही यह यहां से चलना शुरू किया, जैसे ही यहां से चलना शुरू किया, वैसे ही टाइम का जो वैल्यू हो गया वो हो गया t1। टाइम का वैल्यू क्या हो गया, t1। दैट मीन्स t1 समय में, t1 टाइम में यहां पहुंचा है, t2 टाइम में यहां पहुंचा है, t3 टाइम में यहां पहुंचा है, t4 टाइम में यहां पहुंचा है, और t5 टाइम में यहां पहुंच गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये जो टाइम इंटरवल है t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t4 इक्वल टू t5, अगर ये t1 t2 t3 का वैल्यू अगर हम बोल दें कि यहां से यहां चलने में इसको लगा है 5 सेकेंड, यहां से यहां तक चलने में लगा है 5 सेकेंड, यहां से यहां चलने में लगा 5 सेकेंड, और यहां से यहां चलने में लगा 5 सेकेंड, और यहां से यहां चलने में लगा 5 सेकेंड। तो देखो तो टाइम इंटरवल सेम हो गया, ठीक है। ये पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी, ये पोजीशन है सी, ये है डी, और ये है ई। अब ए बी का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड है 5 मीटर, बीसी का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड 5 मीटर, CD का डिस्टेंस है 5 मीटर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 5 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाइम जो लग रहा है ए से बी जाने में दैट इज 5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है ए से बी जाने में, 5 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर। ओके, अगला इंटरवल है बी से सी, उसमें कितना टाइम लगा, उसमें भी 5 सेकेंड लगा। डिस्टेंस कितना किया कवर, 5 मीटर। अगला जो टाइम सी से डी लगा 5 सेकेंड, कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में 5 सेकेंड में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हम लोग क्या देख रहे हैं, कवर कर रहा है। 5 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में 5 मीटर ही चला, फिर उसके अगला 5 सेकेंड में 5 मीटर ही चला, उससे कम भी नहीं चला, ज्यादा भी नहीं चला। मतलब टाइम, जो टाइम इंटरवल है उसी टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नोट करें, ओके ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन इज So now next one is non-uniform motion. What? Non-uniform motion. अब next है type number 2, non-uniform motion. Non-uniform motion. What is non-uniform motion? So when a body
when a body travels equal unequal distances in equal time interval, then the body is said to be in non-uniform motion. That means equal time interval में A, B, C, D, E, A से B में जो टाइम लगा है दैट इज, अगर यहाँ पे T1 की बात करें तो T1 की अगर बात करें तो 10 सेकेंड. हाउ मच? 10 सेकेंड. ए से बी जाने में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड. लेकिन ए से बी जो डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है 7 मीटर. लेकिन अगर वही 10 सेकेंड बी से टी में यानी कि T2 में 10 सेकेंड ही लगा, कितना लगा? 10 सेकेंड ही लगा. लेकिन इस समय जो वो डिस्टेंस कवर किया वो 3 मीटर का किया. अगला 10 सेकेंड यानी कि सी से डी में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड 10 सेकेंड. बट यहाँ पे डिस्टेंस वो कवर किया 10 मीटर का. और अगला डी से ई में T4 इक्वल टू लगा 10 सेकेंड, बट इसमें डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर का. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स आर सेम हियर. A to B time interval 10 second, B to C time interval 10 second, C to D time interval 10 second, D to E time interval 10 second. But what we are looking here that the distance covered by the body between A to B is 7 meter, B to C is 3 meter, C to D is 10 meter, D to E is 4 meter. मतलब क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम जो इंटरवल है हर एक पॉइंट से जो टाइम इंटरवल है सेम है, बट जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसी बॉडी द्वारा. चलो एक कार बनाते हैं. यहाँ पे एक कार यहाँ पे बना दिए. छोटा सा कार है नैनो टाइप से. चलो ये चलेगा यहाँ से. तो ये यहाँ से चला है, बट हम लोग देखें सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. दैट मीन्स द मोशन ऑफ द कार और एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का मोशन कैसा है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. क्लियर है. जैसे यहां से कोई चलना यहां से शुरू किया बाइक से. अब यहां से चलते चलते बाइक से आगे दूर तक कुछ गया 30 के स्पीड से अचानक आगे जाकर के ट्रैफिक हो गया जाम, पूरा एकदम क्राउड ही क्राउड. तो स्पीड क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? ऑब्वियसली घटाएगा. तो उसका स्पीड क्या हो गया? कम हो गया. फिर कुछ देर आगे जाकर देखा पूरा खाली रोड है, फिर दबाया, फिर आगे निकल गया, फिर देखा फिर जाम आ गया, फिर धीरे हो गया. तो इस तरह से जो हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है? नोट करें. ओके. So now some special cases of motion or some special cases of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का कुछ स्पेशल केसेस हम लोग देख सकते हैं. सो सम स्पेशल
cases of motion, some special cases of motion. मोशन का कुछ स्पेशल केस हम लोग लेते हैं. तो फर्स्ट इज नोन एज लीनियर मोशन. लीनियर मोशन क्लियर है. लीनियर मोशन, लीनियर मोशन से मतलब है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन straight line, a straight line, straight line, then the body is said to be in linear motion. Understood? तो किसी भी बॉडी का जब लीनियर मोशन पता करना है तो उससे पता करना है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसका पाथ कैसा है. तो पता चलेगा कि अगर उसका पाथ है स्ट्रेट है दैट मीन्स वो लीनियर मोशन है. जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मूविंग ट्रेन, मूविंग कार, ये सब स्ट्रेट ही चलते हैं, ऐसे तो नहीं चलते हैं, स्ट्रेट चलते हैं. सो दिस इज लीनियर मोशन. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन. हाँ, वेरी गुड. सर्कुलर मोशन. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस में जब कोई बॉडी मूव करता है, किसी भी जब कोई पर्टिकुलर एक्सिस में जब बॉडी मूव करता है तो उस टाइप का जो मोशन है and that is called circular motion. That is called circular motion. ये क्या है? ये फैन है. ये क्या है? फैन है. तो ये फैन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना, हवा ऐसे दे रहा है, हवा दे रहा है. क्लियर है? तो देख रहे हैं हम लोग कि ये फैन क्या कर रहा है, एक एक्सिस पे यहाँ पे फिक्स है. एक्स एक्सिस पे क्या है, ये पर्टिकुलर एक्सिस पे ये फिक्स है और फिक्स होकर के इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो इसका ये विंग मूव कर रहा है बट ये वाला विंग मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो फिक्स है. तो इस टाइप का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल मूविंग फैन, और भी है, सोच करके एग्जांपल लिखना है. मूविंग फैन. ओके, नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन रोटेट करता है. अच्छा, इसमें क्या करता है, इसमें रोटेट किस टाइप से करता है? तो देखो ना, रोटेटरी मोशन क्या होता है कि व्हेनेवर यू ओपन द डोर, जब तुम डोर को खोलते हो तो वो डोर क्या होता है, एक्स यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है और इस तरह से खुलता है, फिर इस तरह से बंद, फिर इस तरह से खुला, फिर इस तरह से बंद, फिर इस तरह से खुला, फिर इस तरह से बंद, फिर इस तरह से खुला. तो इस तरह से किसी एक एक्सिस पे वो क्या है, फिक्स है. किसी एक एक्सिस पे फिक्स है और दूसरा एंड उसका एक एंड किसी एक एक्सिस पे फिक्स है बट उसका दूसरा एंड क्या है, वो फ्री है. दैट्स व्हाई वो क्या करता है, रोटेट करता है इधर उधर. तो इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे डोर, विंडो, etc. क्लियर है? नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेशन. हाँ, प्लीज कीप योर मोबाइल इन वाइब्रेशन मोड ड्यूरिंग एग्जाम. नहीं ऐसा करना है. एग्जाम में मोबाइल लाना सख्त मना है. पकड़े जाने पर
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओके, सो वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट करना, वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उसका सारा, उस बॉडी का सारा पार्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उस बॉडी का सारा पार्ट पूरा वाइब्रेट, सारा बॉडी का पार्ट जो है पूरा वाइब्रेट कर रहा है, सारा पार्ट, बट वो क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, बट वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसका एग्जांपल हम लोग ले लें, सेल फोन और भी बहुत सारी चीजें वाइब्रेट करते हैं। हाँ, जनरेटर, यू नो जनरेटर, जो किसी प्रोग्राम में, शादी विवाह में जनरेटर जो लाया जाता है टेंट हाउस से लाइट जलाने के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम करें, वो जनरेटर जब चलता है देखा कैसे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, बट वाइब्रेट करते करते एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी चल जाता है। बाहर जनरेटर रखा हुआ है, वो वाइब्रेट करते 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 जहां पे शादी हो रहा है वहां पे जाकर के वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसा नहीं है, जहां पे वो है वहीं पे वाइब्रेट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट करते करते नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एंड द फिफ्थ और लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन, इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन में हम लोग क्या देखेंगे, वो क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ऑसिलेट हो रहा है, आगे पीछे, बट उसका टाइम पीरियड धीरे धीरे ऑसिलेशन पीरियड कम होता है। जैसे तुम्हारे घर में जो वॉल वॉच है ना जी, घर में वॉल वॉच है कि नहीं, अब तो वॉच का काम ही नहीं है, अब तो मोबाइल से ही काम हो जा रहा है, नहीं, वेरी गुड। तो जो वॉल वॉच है उसमें देखा कि एक लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है। अब ये क्या करता है, अगर यहां पे बज गया, चलो 6 बज गया, कितना बज गया, 6 बज गया, सुबह का 6 बज रहे हैं, अभी क्या है टाइम, सुबह का 6 बज रहे हैं, तो सुबह का 6 बज रहे हैं, तो इसको 6 बार टर्न करना है, तो एक बार जाएगा इधर, फिर इधर से वापस यहां, फिर यहां, तब हुआ 1 ऑसिलेशन। समझ में आया बात, यहां से ये चला इधर पहला, फिर इधर जाकर के फिर आया इधर, फिर यहां चला इधर, और फिर इधर जाकर के फिर आया इधर, तब जाकर के 1 ऑसिलेशन। उसी तरह से कितना ऑसिलेशन किया, 6 ऑसिलेशन। क्लियर है, एक बार चला, देखो इधर ये है 1 ऑसिलेशन कब होगा, जब यहां से चला यहां, फिर यहां पे आया, तब ये जाकर के 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। एक बार फिर से यहां से चला ऐसे, फिर यहां आया, फिर आया इधर, फिर आया, तब जाकर 1 ऑसिलेशन। ऐसे घूमता है ना, ऐसे टन, तो वो है ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, बेल ऑफ वॉल वॉच। तो इन सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मोशन को नोट करें, कॉपी पे लिखे, क्लियर है, कॉपी पे लिखें ताकि समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज का पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग फिजिक्स में जो भी चीजें पढ़ेंगे सारी चीजें हमारे आंखों के सामने दिखाई देगा, क्लियर, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। Very practical one, just we have to do practical in class 9th as well, clear। so हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है, तो पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे, घर में चुपचाप बैठे नहीं, सिर्फ मोबाइल नहीं देखें, नोट बनाए, पढ़ाई करें, उसको समझे, सोचें, एंड देन इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।